Hello students, good morning to all. Welcome to online classes of Kerala Public School. This is me, Narendra Kumar, and I welcome here. In this video, we will continue our 13th chapter, Surface Area and Volume of class 9th, and we will solve exercise 13.4, which is based on surface area of a sphere. So let's start. So let's talk about the formula which we are going to use in this exercise. The volume of a sphere, that is equal to 4 by 3 pi r cube, where r is the radius of a sphere, and the surface area, that is equal to 4 pi r square. Okay, make sure the lateral surface area and the total surface area for a sphere is equal, same. Okay, while if we talk about the hemisphere, the volume of hemisphere should be half of the sphere, that is equal to 2 by 3 pi r cube, where r is the radius of hemisphere. Okay, and if we talk about the curved surface area, so that is equal to half of surface area of a sphere, that means 2 pi r square. And if we talk about the total surface area, that means if the hemisphere is closed, then the formula to find total surface area of hemisphere, that is equal to 3 pi r square. Okay, so these formula we are going to use in this exercise, and make sure you have noted down and you need to learn it. Okay, so let's start exercise 13.4 now. So here we have in exercise 13.4, question number first, find the surface area of a sphere of radius 10.5 centimeter in first part, 5.6 centimeter in second part, and 14 centimeter in थर्ड पार्ट. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और किसके लिए? स्फीयर के लिए फाइंड आउट करना है. तो अभी हम फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वो क्या था? सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो हम यहाँ से देखो रेडियस का वैल्यू गिवन है, इस रेडियस का वैल्यू हम पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे. लेकिन एक चीज़ का याद ध्यान रखिएगा आप लोग कि पाई का वैल्यू हमें कितना पुट करना है? 22/7, क्योंकि ये हमें दिया गया है अनलेस स्टेट अदरवाइज. ठीक है, जब तक कि आपको पाई का कोई दूसरा वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता, जैसा आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तब तक हम पाई का क्या वैल्यू पुट करेंगे बच्चे? 22/7. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. Here you can see in first part the radius of a sphere, it was 10.5 centimeters. So we will use the formula to find sphere surface area of a sphere, that is 4 pi r square, and we will put the respective value. We are going to put pi is equal to 22/7 and r is equal to 10.5 centimeter. Got it? So here we got 4 multiply 22/7 multiply 10.5 multiply 10.5, that is equal to 1386 centimeter square. Similarly, the second and third part can be solved, and these parts you will solve by yourself. Just you need to use this formula and put the value of pi as well as r. Okay, so let's start question number second now. In question number second, we are given find the surface area of a sphere of diameter. Okay, here we are given diameter instead of radius. In last question we were given radius directly, so just we need to do one thing more, that it is given diameter that is equal to 14 centimeters. So here we have to find radius, and radius would be half of diameter, that means 7 centimeter for first part. Got it? And then just put the value and solve. Okay, so you can solve this question. बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने सॉल्व किया, बस यहाँ पे आपको इस डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करना है, और फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें पाई का और रेडियस का वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा. बाकी पार्ट्स भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. गॉट इट? क्योंकि ये डायमीटर्स गिवन है, रेडियस फाइंड आउट कीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए. समझ गए बच्चे? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. अगर आप
सरफेस एरिया की बात करते हैं एक हेमिस्फेयर के, और वो भी कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमने पढ़ा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 3 पाई r square. Got it? And here we need to put pi is equal to 3.14 and r is equal to 10 centimeter. So let's solve this question. Here you can see the total surface area of hemisphere is equal to 3 pi r square. The radius of hemisphere already given in question, that is equal to 10 centimeter, and we will put pi is equal to 3.14. So just put the value. So here we got 3 multiply 3.14 multiply 10 multiply 10, and after simplify this we got 942 centimeter square. Got it? So the total surface area of hemisphere of radius 10 centimeter is 942 centimeter square. Got it? Now here we have question number 4. In this question, the radius of a spherical balloon increased from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of balloon in two cases. Got it? क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक बैलून है जो स्पेरिकल शेप में है और उसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है जब हम उसमें क्या करते हैं, एयर को उसमें पंप करके अंदर डालते हैं। गॉट इट? तो इन दोनों केसों में आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो इन दोनों केसेस में उनके सरफेस एरिया है आपको उनका रेशियो बताना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे दो फिगर देख पा रहे होंगे स्फेयर का। ये सबसे पहला है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। जब इसमें हम एयर को पंप करते हैं, ठीक है, तो एयर पंप करने के बाद में इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाता है, 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में सरफेस एरिया क्या है, दोनों केसेस के लिए सरफेस एरिया कितना है हमारे पास। उसके लिए हमारे पास है radius of balloon in initial position it was 7 centimeter, so surface area of balloon should be 4 pi r square, that means 4 multiply pi multiply 7 multiply 7. got it? और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7 multiply 7 is equal to 49 and 49 multiply 4 that is equal to 198. ओके, सो यहाँ से आपको जो सरफेस एरिया मिला बैलून का वो मिला 198 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने पाई का वैल्यू पुट नहीं किया। पाई का वैल्यू हम यहाँ पे इसलिए पुट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो फाइंड आउट करते टाइम पाई जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो अभी सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में रेडियस बैलून का कितना हो गया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। सो अब इसमें भी हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इस केस के लिए भी हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, और इस बार का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर होता है बच्चे, 14 मल्टीप्लाई 14 दैट इज इक्वल टू 196, और 196 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। गॉट इट? तो ये आ जाएगा आपका 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई भी ना करें, इनको सीधा कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है रेशो। तो CSA ऑफ द spherical balloon in first case divided by CSA of spherical balloon in second case. So that's what equal to 4 pi multiply 7 multiply 7 divided by 4 pi multiply 14 multiply 14. Got it? So 4 5 से 4 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 7 जा भी 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14. So actually we got 1 by 2 multiply 1 by 2, और इनको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 by 4. समझ गए? So the required ratio is 1:4. Okay. Now let's talk about next question. Question number 5. A hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin planting it on the inside of the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. Okay. So आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो इस तरह से हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका जो इनर डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। सो इनर रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ 10.5 दैट इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। ओके, सो इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो प्लेट लगाई गई है, ठीक है, वो इनर सरफेस एरिया पे ही लगाई गई है। तो इनर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है, सो हाफ ऑफ स्फेयर दैट मीन्स 2 pi r square. Okay, so let's put the value of pi as well as r. So here we got 2 multiply 22 by 7 multiply 5.25. अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था रेडियस, मल्टीप्लाई 5.25. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना मिलेगा बेटा, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और जो कॉस्ट दिया गया था हमें टिन प्लाटी का, वो कितना था आपको, वो था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपीज़ जो है चार्ज है। तो इसलिए हम अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना चार्ज होगा, तो ये आ जाएगा 16/100 रुपीज़। और हमारे पास टोटल एरिया कितना है, जो सरफेस एरिया आया था वो था 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट आ जानी चाहिए 16/100 मल्टीप्लाई 693/4। गॉट इट। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ₹27.72। समझ गए बच्चे। So the total cost of tin plating that is equal to rupees 27.72. Okay, now let's talk about next question. Question number 6. Find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार आपको रेडियस फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया आपको दिया गया है किसका, स्फेयर का। तो स्फेयर का सरफेस एरिया हमारे पास कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गॉट इट। सो 4 पाई आर स्क्वायर में हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और इसको पुट करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। समझ गए बच्चे। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करके आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, और हम इसको पुट करने जा रहे हैं जो हमारे पास फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करने का, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 और मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 4। क्या किया है बेटा, ट्रांसपोज किया है 22/7 को और 4 को। Okay, so here we got r square is equal to 49/4. That means r is equal to square root of 49/4, और 49/4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आना चाहिए, 7/2, और 7/2 किसके इक्वल होगा, 3.5 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। Here we have question number 7. In this question we are given the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. Find the ratio of their surface area. Okay, आपको बताया गया कि मून का जो डायमीटर है वो लगभग 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि डायमीटर जो है अर्थ का वो है x, तो रेडियस कितना हो जाना चाहिए, हाफ ऑफ डायमीटर दैट मीन्स x/2, और रेडियस का यूज़ करते हुए फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप में हम उसको मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करने पे जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पाई एक्स स्क्वायर। समझ गए बेटा, क्योंकि यहाँ से हम रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे x/2 मल्टीप्लाई x/2, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गॉट पाई एक्स स्क्वायर। गॉट इट। और इसके साथ में हमें दिया गया था कि जो डायमीटर है मून का वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ, और डायमीटर ऑफ अर्थ हम क्या लेके चल रहे हैं, x, सो दैट मीन्स डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाना चाहिए, x/4। और अगर डायमीटर आपके पास x/4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, x/8, क्योंकि आप उसका हाफ करेंगे x/4 का, तो कितना मिलेगा आपको, x/8। अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मून बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई मल्टीप्लाई x/8 मल्टीप्लाई x/8, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। सो नाउ लेट्स फाइंड द रेशियो। सो रेशियो शुड बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, क्योंकि सरफेस एरिया का ही रेशियो आपको फाइंड आउट करना था मून का अर्थ के रेस्पेक्ट में। ओके, सो इट्स वुड इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय
पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1/16. सो दैट मीन्स द रिक्वायर्ड रेशो दैट इज इक्वल टू 1:16. ओके. Next question, question number 8. In this question, we are given a hemispherical ball is made of steel of 0.25 centimeter thick. The inner radius of ball is 5 centimeter. Find the outer CSA of the ball. Got it? इसमें देखो क्या दिया गया है, एक hemispherical ball है जिसका inner radius आपको कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर और आपसे पूछा गया है इसका आउटर सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस है स्टील का 0.25 सेंटीमीटर. सो आउटर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस. ओके, सो दैट मीन्स r प्लस टी दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड आउट करना है आउटर सी एस ए ऑफ बाउल, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. कैपिटल आर क्या है आपके पास, आउटर रेडियस, जो कितना है 5.25 सेंटीमीटर. सो पुट करते हैं पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 5.25. सो हमें क्या मिल रहा है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके कितना आंसर मिलेगा बेटा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, जो ये हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका आउटर CSA है. समझ गए बेटा. आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर. गॉट इट. एक सिलेंडर है और उसको किससे एनक्लोज किया गया है, स्फीयर से. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, उसके अंदर एक स्फीयर रखा गया है और ये स्फीयर जो है वो उसको क्या, दोनों तरफ इसकी जो साइड्स हैं यहाँ से और बेस से टच करता है. ओके, तो अब इसके साथ में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड CSA ऑफ द सिलेंडर और इसके साथ में रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. गॉट इट. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, एक सिलेंडर है और उसमें हमने क्या रखा है, एक सरफेस एरिया जो कि उसको जो आपकी बेस है दोनों साइड्स हैं और टॉप जो है वो प्रॉपरली उनको क्या करता है, टच करता है. इस तरह से ऊपर से ये इस सतह को टच कर रहा है, नीचे आपके बेस को टच कर रहा है और दोनों साइड में इनको टच करता है. देखो इसका रेडियस कितना है r, किसका, स्फीयर के अगर रेडियस की हम बात करते हैं वो हमने लेट किया है r, तो इसका डायमीटर कितना हो जाना चाहिए ट्वाइस ऑफ r, और ट्वाइस ऑफ r इस जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके लिए क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, सॉरी. ठीक है, समझ गए. और साथ ही जो सर्कुलर बेस है सिलेंडर का उसका रेडियस भी कितना होगा, वो r ही होगा, इसके रेडियस के इक्वल. समझ गए. सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. So as I told, the cylinder just encloses the sphere in it. So the height of cylinder will be equal to the diameter of sphere. That means that is equal to twice of r. जैसे मैंने अभी कहा था, ठीक है. और इसके साथ में radius of cylinder will be equal to the radius of sphere. वो भी मैंने अभी बताया था आपको. तो ये कितना हो जाएगा, radius of sphere है हमारे पास r, और ये जो height है आपके पास ये कितना हो गया सिलेंडर के लिए, twice of r. Got it. अब फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. उसके लिए फॉर्मूला आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, r where representing radius of sphere, so that is equal to 4 pi r square. Got it. And now we are going to find surface area of cylinder. सिलेंडर का सरफेस एरिया हमने पढ़ा था कितना होता है 2 पाई RH, जहाँ पे r है रेडियस और h है हाइट सिलेंडर के लिए. सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि रेडियस तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, सिलेंडर और स्फीयर के लिए, लेकिन हाइट जो है आपके पास वो कितना था, वो था ट्वाइस ऑफ r. तो इसको जब आप पुट करेंगे तो सॉल्व होके कितना मिल जाएगा आपके पास, आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर. समझ गए बेटा. सो सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा गया था उसमें जो सरफेस एरिया है स्फीयर का कितना मिला है 4 पाई r स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में जो आपका सिलेंडर का CSA आया वो कितना मिला है 4 पाई r स्क्वायर. सो लेट्स फाइंड द रेशियो. So ratio of surface area of sphere to the curved surface area of cylinder, that means 4 pi r square divided by 4 pi r square, that is equal to 1:1.
1। गॉट इट। तो जो सरफेस एरिया का रेशो आया है दोनों फिगर के लिए वो कितना आया है, वो है 1:1। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बच्चे आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दिए रहते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं खुद से, जो कि इन्हीं के बिहाफ पे होंगे और इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। अब मुझे लगता है आप इस चैप्टर के साथ कंफर्टेबल हो गए होंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना। गॉट इट। लेकिन याद रखिएगा ये चैप्टर आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए हैं, तो आप उनको लिख लिख के लर्न कर सकते हैं। गॉट इट। और इसी के साथ में आज वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.5 जो कि वॉल्यूम बेस्ड है, और वॉल्यूम हम हर एक फिगर के लिए अभी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कॉन हो, सिलेंडर हो या फिर स्फेयर हो। ओके, समझ गए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।